Hi all. Today our topic is a legend of the Northland lesson number 5 poem from the book of Beehive. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep through them through, where the harness of the sweet reminder to the sledge when it snows, and the children look the years bears cubs in their funny clothes, funny fury clothes. Then they tell them a curious story. I don't believe this true, but and yet you may learn a lesson. Yet you may learn a lesson. Okay, if I tell the take to you. Once when the good Saint Peter lived in the world below, and walked about it preaching just as he did you know. He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from the store of cakes to give him a single one. Okay. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. Then she took it in a scrap of dough and rolled in flat and baked in thin a wafer. As a wafer. But she could not part with that. For she said, my cakes that seem too small, when I eat of them myself, are you too large to give away? So she put them on the shelf. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint. And surely such a woman was enough way provoke a saint. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food, and boring and all day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word. And out to the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. She had a scraped cap on her head, and that was left the same. But all the rest of the hard clothes were burned, black as a coal in the flame. And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the tree still this very day, boring for food. Written by फनी कैरी। ये एक स्टोरी है, एक ठंडे स्विट्जरलैंड का उधर ठंडे बहुत होता है, आपको पता है। तो एक सेंट पीटर था जो वो साधु जैसा थे, तो उन्होंने साधु घूमते घूमते आया, बहुत टायर्ड था, तो एक कुटीर में देखा जो कुछ लाइट जल रहा है, तो उन्होंने उधर आया तो एक लेडीज़ केक बना रही थी। तो लेडीज़ के पास जाके बोला मुझे बहुत भूख लगा, तो थोड़ा प्लीज़ दे दो, मुझे भूख मिट जाए, तो मेरा हंगरी ख़त्म हो जाए। तो जाके उनको बोला, तो उन्होंने फिर भी बोला ठीक है। तो उनको जो केक ऑलरेडी बन चुका था वो केक देना नहीं चाह रहा था। क्यों नहीं देना चाह रहा था? वो थोड़ा मोटा सा था। फिर उसने और पतला बनाया, फिर बोला ना ये भी तो नहीं दिया जाएगा। फिर वो तीसरा बनाया। ऐसा करते करते वो बनाते वेफर जैसे आलू के आप लोग पोटैटो चिप्स खाते हो ना, तो चिप्स जैसा पतले से केक बनाया, तो वो भी नहीं दिया, वो सेल्फ पे रख दिया। तो तब साधु का क्या हुआ? साधु को गुस्सा आया, साधु का भूख के मारे वो फेंट हो गया। फिर जब उठा तब बोला, तब लेडी ने बोला मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो साधु के पास तो पैसा होता नहीं है। तो साधु ने क्या किया उस टाइम? साधु ने बोला एक काम करो, हाँ तुम इतनी सेल्फिश हो, जे इंसान भूखे मर जा रहा है, भूखे पे
भूख के ये चलते उन्होंने फेंट हो गया, एक साधु, हाँ, तो तब भी तुम एक टुकड़ा केक नहीं दे पा रहे थे, तो ठीक है मैं तुमको अभिशाप देता हूँ, तुम ऐसे इंसान पृथ्वी में रहने का ये हक नहीं है। तुम एक काम करो, ये चिमनी से अभी तुम किचन में जो चिमनी था वो चिमनी से निकल जाओगे, काला सा एक बाट बन जाओगे, और वो चिड़िया कोर्स का नाम है उठपैकर। उठपैकर कौन होता है मालूम है? जो ट्री में पेड़ में देखोगे टिक 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 कर लकड़ी, वो कुछ नहीं खाते हैं, उसको कुछ खाना मिलता ही नहीं है, वो लकड़ी में ठुक 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 करके खाते हैं, वो बन गया था उठपैकर। तो फिर ये हमारा किसने लिखा था? आप लोग को मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, तो पोएट जो है फॉबी कैरी। तो फॉबी कैरी वॉज बोर्न कब? 1824, 4th September। हर सिस्टर्स नेम वॉज एलाइस कैरी। ये दोनों बहनें थी, दिस टू सिस्टर्स को पब्लिश पोएम्स इन 1849। दोनों बहनी पोएट थी, और दोनों बहन ने क्या किया, कविताएं लिख के निकाला था, जिसका नाम कब निकला था? 1849। और इन्होंने कब इनका डेथ हुआ? 1871 जुलाई 31। ठीक है, तो द नॉर्थलैंड, हम इसको शॉर्ट में पढ़े, थोड़ा सा इंग्लिश में ये करें। द नॉर्थलैंड इज ए कोल्ड रीजन, एक वेरी कोल्ड रीजन, नॉट ओनली रीजन कोल्ड रीजन, वेरी कोल्ड रीजन। तो कवर्ड विथ स्नो, स्नो से ढका रहता है। इन वेयर द नाइट्स आर लॉन्गर, द डे इज विंटर। ऐसा भी हमारे पास भी, हम लोग जब भारत में रहते हैं हमारे इधर इतना ठंडी नहीं होता है, फिर भी देखोगे हम लोग को जो दिन छोटा लगता है और रात बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि शाम बहुत जल्दी होता है, 4:30-5 के बाद से देखो धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है, तो नाइट हमारे लिए ठंडी के मौसम में बड़े होता है। तो उधर तो हमेशा स्नो है, तो ऑब्वियसली दिन बहुत छोटा होता है, रात बहुत लंबे होते हैं। द पोएटिस डज नॉट बिलीव दैट द टेल इज ट्रू। जो कवि है उनको ये कहानी लिखा तो है, लेकिन उनको लग रहा है सही नहीं है, फिर भी उन्होंने लिखा था। बट फील्स दैट द रीडर में लर्न समथिंग। लेकिन इन्होंने इसलिए लिखा, उनको लगा जे ये पोएम से कुछ सीखने को मिलेगा। कोई हंगर है, भूखा है, आज हमारे चारों तरफ कोरोना, अगर हमारे पास खाना है और सामने से एक छोटी बच्ची जा रही है और उसको भूख के मारे उसके मम्मी को बोला मम्मी कुछ खाने को दो, तो कोई दुकान खुला नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, तो उस टाइम आपके पास अगर एक बिस्किट की पैकेट भी हो तो प्लीज़ उसको दे दो, तो उसमें आपका खाना कुछ कम नहीं पड़ेगा। अगर वो बिस्किट की पैकेट में 10 बिस्किट होता है तो आप उसको 4 दे दो, बाकी 6 आपने रखो, कुछ तो दो। तो ये होता है इंसानियत। लेकिन वो जो लेडी थी, वो लेडी की अंदर ऐसी लालच थी जो खुद छोड़कर किसी को नहीं पहचानती थी। तो आज हमारे चारों तरफ कोरोना होता है, तो कोरोना के चलते हम लोग को, आप लोग देखते हो बहुत कुछ क्या करते हैं, सबको खाना दे रहे हैं, कभी खाने के पैकेट दे रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ होता है, ये चीज़ हमारे अंदर कुछ तो इंसानियत बोल के चीज़ है। हाँ, आपके पास नहीं है, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन कुछ है तो प्लीज़, हम लोग क्लास में, जब आप लोग क्लास में आते हो, क्लास में आप टिफिन तो दोस्त के साथ शेयर करते हो, तो अगर आपके पास ब्रेड है, आप रोटी खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, आपके सामने से कोई बच्चे जा रहे हैं, प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। तो इसमें आपका इंसानियत, आपकी ये पता चलता है कि हाँ, आपके अंदर एक काइंड सॉफ्ट कॉर्नर है आपके दिल में। तो उनके, वो लेडी जो थी, उनके पास वो कुछ नहीं था। वन सेंट पीटर वेंट प्रीचिंग, ठीक है, वन सेंट पीटर वेंट प्रीचिंग ऑन द अर्थ जस्ट ए जीसस क्राइस्ट। वो जो सेंट पीटर थे ना, आपको जो आए थे, शाम को आए थे, वो जीसस क्राइस्ट की जाए। आपको मालूम है जीसस क्राइस्ट क्या किया था? तो जीसस क्राइस्ट हैड डन, वो उन्होंने जीसस क्राइस्ट जैसा कुछ किया था। ही वॉज वेरी हंग्री एंड फेंट फ्रॉम फास्टिंग एंड प्रीचिंग। ही स्टॉप्ड ए लिटिल वुमेन्स कॉटेज to ask for some food, but that time the lady was baking a cake. So the saint asked her to give him one of the cakes to eat. जो खाने के लिए उस साधु ने बोला, आई हैव नथिंग विथ मी, प्लीज़ गिव मी वन केक, बस शेयर विथ मी योर केक। गोटे केक भी नहीं बोला, बोला थोड़ा सा काट के दो, लेकिन मुझे कुछ खाने के लिए दो, बिकॉज आई एम वेरी हंगली। और ठंडे बाहर स्नो चल रहा है, बर्फ़ चल रहा है, तो प्लीज़ गिव मी शेल्टर। अगर शेल्टर नहीं दे सकते, जो ये होता है
फायरवुड होता है, जो आग का लकड़ी जल रहा है उसमें तो बैठने दो थोड़ा। तो ये लेडी एकदम राजी नहीं हुआ था। द लेडी ट्राइड टू बेक ए लिटिल वन टू गिव हिम बट फाउंड दैट इट वॉज सो लार्ज। जब वो अपना केक बना रहे थे वो बड़ा सा था, उससे भी वो छोटा बनाया, फिर भी उसको लगा ना ये तो नहीं दिया सकता है, आई कैन गिव, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे। फिर सी ट्राइड टू बेक 2 more टाइम्स, फिर से वो 2 बार बनाने का कोशिश किया। एंड लार्ज टू हर टू पार्ट, हाँ विथ, लग रहा है नहीं ये बड़ा है, ये मुझे देना नहीं है, ये मुझसे बड़ा, मेरा केक से थोड़ा छोटा है, बात सही है, लेकिन देने के लिए बड़ा है। ऐसा करते करते सी मेड सो मेनी टाइम्स। तो लास्टली सी मेड ए वेफर थिन केक टू गिव, एकदम पतली, जो पोटैटो चिप्स आप लोग खाते हो, बनाना चिप्स खाते हो, पोटैटो को आप लोग वेफर बोलते हो ना, तो वैसी एक केक बनाया। तो सोचो, कैन यू इमेजिन, जिसको इतना भूख लगा उसको ऐसी एक छोटा सा केक बना के दिया। अगर उसके पास नहीं होता दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन दैट लेडी हैज़, उसके पास है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें से कुछ नहीं दिया, बार बार बनाते गया और कीप इन द सेल, अपने सेल्फ में रखते गया। लास्ट में वेफर जैसा एक बनाया और उसको क्या किया, वेफर जैसा बना के उसको दिया। तो द हंग्री सेंट वॉज एंग्री, अभी उसको गुस्सा तो आएगा भाई, वो साधु, एक तो साधु है, थर्स्टी है, हंग्री है, इवन है एकदम ठंडी में वो जम जा रहा था, सिवरिंग हो रहा था, तो उनको ही वॉज वेरी एंग्री, उनको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आने से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रीडिंग लेडी को, जो लालची लेडी, उसको कुछ सिखाना चाहते थे। शी वांट टू टीच समथिंग, ही वांट टू टीच समथिंग टू दैट लेडी, वो लेडी को कुछ सिखाने के लिए सोच रहा था, जो वो लेडी को हम कुछ सिखाए। सो ही कास्ड अभिशाप, कास्ट मतलब अभिशाप, इसका अपोजिट होता है ब्लेस, ब्लेस मतलब आशीर्वाद। तो कास्ट क्या किया, कास्ट आर सेइंग दैट शी वाज टू ग्रेडी टू बी ह्यूमन और टू हैव फूड, उसके पास कुछ खाना होने के बावजूद भी एक इंसानियत। अरे आपके घर के सामने से भिखारी जा रहे हो, अगर वो भूख के मारे उधर गिर जा रहा है तो आप तो दोगे ना, इतना इंसानियत तो हम सब में होना चाहिए, और है सबका, यू कैन डू, आप लोग करते ही हो। और आप देखते ही हो कितने सारे इवन फिल्म एक्टर वगैरह आ गया सामने, पुलिस दिया, कितने सारे NGO वाले खाना निकाल निकाल के सबको दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत जगह बहुत ये है, लेकिन कुछ तो जब एक साधु, एक्चुअली वी आर एफ्रेड ऑफ द साधु, हम लोग को साधु से डर लगता है, क्योंकि साधु कभी भी आपको आशीर्वाद भी दे सकते हैं, आपको अभिशाप भी दे सकते हैं। तो साधु क्या होगा, साधु का क्या होगा, हम साधु को देख के ऐसे ही डरते हैं। देखो आप भिखारी ऐसा है तो आप पैसा दो, ना दो, खाना ना दो, लेकिन साधु जैसे आपको कोई सेंट आपके दरवाजे के सामने भीख मांगने आए, बा कुछ मांगने आए ना, भीख कुछ मांगने आए, तो आप क्या करते हो, मम्मी के पास से कुछ रोटी व कुछ आए तो ठीक है, कोई फ्रूट्स घर पे नहीं भी हो सकता है, इट्स ओके, लेकिन कुछ पैसा तो उसको दे ही सकते हो ना, 10 रुपया तो दे सकते हो, कम से कम दिल की तसल्ली ऐसी होती है। जे यू विल नॉट गिव अस कार्ड्स, हमको उन्होंने क्या नहीं देंगे, अभिशाप नहीं देंगे, ठीक है। कभी आशीर्वाद देते भी है, कोई कोई साधु का आशीर्वाद हमारा लग भी जाता है, कभी कभी कोई साधु का आशीर्वाद हमको लग भी जाता है। तो शी वॉज टू ग्रेडी टू बी ह्यूमन और टू हैव हर वार्म, तो क्या किया, वो हैव फूड शेल्टर एंड फायर टू कीप हर वार्म। तो उसने बोला लेडी को, जी मुझे खाना दो और मुझे थोड़ा ठंडी के हाथ से बचने के लिए आपका जो फायर वुड जल रहा है आपके घर पे, टू अलाउ टू मी टू सिट देयर नियर द फायर, मुझे अलाउ करो, कहाँ पर, वही जो लकड़ी जल रहा है वहीं पे मैं थोड़ा गर्म हो जाऊँ, क्योंकि आई एम वेरी, मुझे ठंडी लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, क्योंकि स्नो है। तो स्नो में तो ऐसा भी होता ही है, ठंडी में तो होता ही है, ऊपर से स्नो है। तो उन्होंने क्या किया, नहीं, शी वॉज ग्रेडी बट शेल्टर एंड फायर वुड, शी वॉज ट्रांसफॉर्म इन टू ए वुड पैकर। तो बोले ठीक है, यू विल नॉट गिव एनीथिंग फॉर फूड शेल्टर फायरवुड, आप कुछ मुझे कुछ भी नहीं दे रहा, तो आई एम गिविंग द कार्ड्स, मैंने आपको अभिशाप दे रहे। क्या कार्ड्स दिया, अभिशाप क्या दिया मालूम है, अभिशाप है दिया जे यू विल ट्रांसफॉर्म के वुड पैकर। वुड पैकर जो एक चिड़िया होती है, हैं, यू कैन सी इन द बिग ट्री,
जो बड़ा ट्री होता है, ट्री के बाजू में आप देखोगे कभी कभी कोई चिड़िया होता है जो टुक 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 करते हैं, तो क्या वो घर बनाने के लिए? नहीं, वो क्या बनाने के लिए मालूम है? वो उसमें खाना ढूंढते हैं, वुडपेकर। दैट इज द वन टाइप ऑफ बर्ड। तो उसने क्या किया, साधु ने गिवन द कार्ड्स एंड ट्रांसफॉर्म टू हिम टू हर टू ए वुडपेकर। All her clothes except her scarlet cap were burned as she went up the chimney. उसके जितने लेडीज़ की जितने कपड़े वपड़े था, हैं, सब कुछ जो ये आग में जो फायरवुड जल रहा था उसमें जल गया, जलने दे दिया। और क्या हुआ, उसके टोपी पहन के निकल गए। कहाँ से गए मालूम है? She went through the chimney. चिमनी कहाँ होता है? In the kitchen. आप देखोगे अब हर घर पे होता है, हैं, जो धुआं, जो डस्ट, ये सब बाहर जाते हैं, तो वो चिमनी जो है, वो चिमनी से वो लेडीज, सोचो साधु कैसे थे। दैट मीन्स दैट सेंट जो था वो साधु बहुत बड़े साधु थे, लाइक ए जीसस क्राइस्ट। पहले हम लोग का बिगिनिंग ऑफ द लेसन ऑलरेडी सेड ये लाइक जीसस क्राइस्ट। तो उन्होंने उसको कार्ड गिवन द कार्ड्स। क्या कार्ड्स दिया था? जे ये विल ट्रांसफॉर्म है वुडपेकर। ठीक, और कहाँ से जाओगे? थ्रू द चिमनी। ये भी नहीं जो घर के बाहर दरवाजे से ही टू गो, नहीं, चिमनी। तो चिमनी से मेन एनी इंसान अगर चिमनी से जा रहा है तो छोटे से हो जाएगा। तो छोटे होने से क्या होता है, वो बड बन गया, बड का बना दिया, क्योंकि वो चिमनी से और कोई जा नहीं सकता, कोई इंसान जा नहीं सकता। और उसका जितने कपड़े था ऑल आर बर्न नियर ऑफ द फायरवुड। तो क्या हुआ, चिमनी एंड शी टर्न ब्लैक इन कलर विथ ए रेड फ्लेमिंग एज शी फ्लेव आउट। जब वो चिमनी से बाहर गया तो उसकी पूरा बॉडी काला हो गया, क्योंकि शी हैड नो क्लॉथ्स विथ हर बॉडी। उसके जितना कपड़े थे सब जल गया था, खाली जो टोपी था वो टोपी पहन के गया था। तो ड्यू टू दैट जो वुडपेकर होता है, जो ये बर्ड होता है, वो बर्ड क्या होता है मालूम है? वुडपेकर जो होता है उसकी जो मुंह होता है, उसके सामने जो बॉडी और चोंच की है वो रेड कलर होता है, क्योंकि वो टोपी पहना था, इसीलिए उसकी सर के उधर जो है वो रेड होता है ड्यू टू द कैप। वो टोपी पहने थे इसलिए टोपी, बाकी पूरा शरीर बॉडी ब्लैक है। तो शी वॉज कास्ट टू बिल्ड ए नेस्ट एंड गेट सम फूड बाई बोरिंग इनटू द वुड। हाँ, तो उसको ऐसा बोला था जो घर नहीं बना सकते, क्योंकि उसने वो लेडी के पास घर था, खाना था, गर्म होने के लिए फायरवुड जल रहा था, फिर भी एक साधु देख के भी उसको अलाउ नहीं किया था। इसीलिए वो लेडी को ऐसे कार्ड्स साधु ने दिया था जो मेक ए वुडपेकर, जो कभी घर नहीं बना पाते हैं, वो कभी नेस्ट नहीं बना पाते हैं। वो क्या, उसका खाना क्या होता है, लकड़ी के अंदर टुक 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 करके वो खाना बनाते हैं, उसमें खाना बनाते हैं और उसी में ही रहते हैं। तो कोई भी बड़ा पेड़ होता है, बड़ा पेड़ में, छोटे पेड़ में तो लकड़ी नहीं होता उतना, तो बड़ा पेड़ का जो स्टिम होता है, बट जो ब्रांच बड़ा सा गया उसमें वो टुक टुक करके देखना वुडपेकर की आवाज़ आती है, वो वहीं पर ही खाना ढूंढते हैं और वहीं पर रह जाते हैं, वो घर पे अभी बना नहीं पाते हैं। तो एवरी विलेज स्कूल बॉय हैज सीन हर पैकिंग इनटू द वुड ऑफ द ट्री ऑल डे फॉर फूड। हाँ, तो वो पूरा दिन खाने का ही इंतजाम करना चाहते हैं, क्योंकि एक चोंच बिग के द्वारा कितना खाना मिलेगा लकड़ी के अंदर टुक टुक। एक वुडपेकर जो होता है वो बाढ़ है, और वुड कटर जो होता है वो लकड़ी को काटते हैं। किससे काटता है? विद द हेल्प ऑफ एक्स, कुठर के साथ। तो उसको काटने में कितना टाइम लगता है, और वही लकड़ी को अगर एक चिड़िया बर्ड वुडपेकर क्या कर रहा है, उसको टुकते जा रहा है, उसको टुकते जा रहा है। तो वो ऐसी बाढ़ हो गया, तो सब बच्चे ने देखा और दे वर एंजॉय। ठीक है, तो ये लेसन से हम लोग को क्या सीख मिला? हम लोग को ये सीख मिला जी हम लोग कभी भी क्या कर सकते हैं, अगर हमको कुछ मदद करना है, आपके पास है तो यू हैव टू गिव। अगर आपके पास है तो आप क्या करोगे? आप दे सकते हो, है ना। तो आप क्या दे सकते हो बोलो? आपके पास है तो आप क्या दे सकते हो? तो ये जो पोएम है, ये पोएम आपको लर्न करनी है। ठीक है,
तो ए बैलड इज ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा। इसको आप गाना बना सकते हो, छोटे छोटे स्टैंजा लेके। ये स्टोरी से आपको क्या इम्पोर्टेंट नोट्स आपको क्या बना सकते हो, आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास क्या मिला, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द लेसन। इफ यू हैव एनीथिंग विथ यू प्लीज शेयर टू अदर्स। आपके पास 3 रोटी है, तो अगर आपका भूख 2 रोटी में मिल सकता है तो आप 1 रोटी किसी को शेयर तो कर सकते हो। तो हम लोग एक्चुअली वी आर अफ्रेड ऑफ द साधु सेंट। साधु बदमाश भी होता है, साधु बहुत अच्छे भी होते हैं। साधु जो ओरिजिनल साधु होता है वो कभी किसी का नुकसान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू दैट लेडी, बिकॉज दैट लेडी वॉज वेरी ग्रीडी एंड शी वॉज वेरी सेल्फिश, व्हेन द सेंट वांटेड वन केक बट शी रिफ्यूज्ड। उन्होंने वो भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो इतना सेल्फिश है। बोला ये साधु है, पैसा देगा कि नहीं देगा, फिर मैं अपने लिए रख दूँ। तो दैट लेडी वॉज वेरी सेल्फिश, दैट लेडी वॉज वेरी सेल्फिश, ड्यू टू दैट शी डिडेंट गिव एनीथिंग। इसी के कारण कि वो कुछ भी नहीं दिया, इसी के कारण उसने कुछ भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जो लेडी थी वो लेडी वेरी ग्रीडी थी। तो आपके पास ऐसी कभी कोई घटना हो तो आप उसको शेयर कर सकते हो। अगर इफ़ यू वांट टू हेल्प टू ईच अदर, ट्राई टू हेल्प। मैं क्लास में भी आप लोग को बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ, अगर आपको किसी को 1 रुपया देना है तो प्यार से दो, 10 रुपया दे के उसकी सर मत फोड़ो, ठीक है। अगर आपके पास 1 रुपया का सिक्का है तो दूसरे के पास वो बहुत वैल्यूएबल है, तो आप यू हैव टू शेयर इट। आपके पास खाना है, यू स्टे एट होम, योर मदर कुक द फूड, वेरियस काइंड्स ऑफ। लेकिन जब दुकानपाट बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे हैं जिसके पास नौकरी नहीं है, बिजनेस छोटा मोटा दुकान करते हैं, जो घर पे मांग के खाते हैं, ऐसा भी बहुत क्या है। लेकिन उस टाइम क्या है, जिसके पास दुकान में जाके खाना मिलता था, अभी वो दुकान में जाके खाना नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो यू कैन शेयर विथ देम, आप लोग को कर सकते हो। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ए पोएम, ये पोएम से हमको ये सीख मिलता है, प्लीज शेयर विथ अदर्स, ठीक है। डोंट सी जे ही इज ए सेंट बट ही इज ए बेगर, तो आप सेंट को भी दोगे तो बेगर को भी साथ में यू हैव टू शेयर। अगर आपके फ्रेंड को शेयर कर सकते हो, यू हैव टू शेयर विथ योर फूड विथ योर फ्रेंड, तो आई हैव टू गिव टू अदर्स ऑल्सो। अपने उनके साथ भी शेयर करो जिसके पास हैव नो फूड, ठीक है। आपके बहुत सारे कपड़े होते हैं, जो कपड़े आपके छोटा हो गया, वो पुराना हो गया, यू केप्ट इन ए साइड, आपने एक साइड में रख दिया, तो यू हैव टू शेयर, आप यू हैव टू गिव टू द पुअर, आप गरीब को दो, जिसके पास नहीं है उसको दो, तो आपका कभी कम नहीं होगा, ठीक है। तो दिस पोएम teaches us to give each and everything. If you have sufficient, then you have to share with others. Don't be greedy, don't be selfish. अगर आपके पास है तो आप उनको दीजिए। तो ये पोएम से हमको यही सीख मिल रहा है, तो आप कर सकते हो। आई नो दैट you have to give. Now at present corona is outside our totally environment जो है हमारा, we are suffering, not only we, all country people, हर जगह में अभी ये चल रहा है। तो अगर आपके पास, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, इफ़ यू हैव सफिशिएंट फूड, सफिशिएंट क्लॉथ्स एंड यू आर नॉट वेयरिंग दिस टाइप ऑफ क्लॉथ्स, तो यू गिव टू देम, ओके। तो बी सेफ, अच्छा से रहिए, और write down in your notebook the poem, ये summary, and share your experience in this lesson. If you have done this type of experience, so you should be share in the class, okay. तो keep safe,
अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय।